Welcome back, my future leaders. This is Harshi, your science instructor. Today we are doing chapter number 7 and the chapter name is Conservation of Plants and Animals. So you all know the meaning of conservation. Save करना, protect करना, right? तो किस किस को protect करेंगे हम? Natural resources, animals and plants को. So let's do the warm-up exercise. Here is a given picture of a forest. So can you list the 10 things which you can obtain from the forest and also write the uses of these things. So we are getting so many things from forest. For important most is oxygen that we are getting, and spices, wood we are using for construction purpose, for making furnitures, spices, medicines, in fact some medicinal plants are there, oil seeds we are obtaining from the forest. इसके अलावा हम क्या लेते हैं? परफ्यूम्स बनाते हैं फ्रेग्रेंसेस ऑफ फ्लावर्स से. तो बहुत सारी चीज़ें, लिस्ट इज ह्यूज. सो वी शुड कंजर्व फॉरेस्ट. और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट सॉइल इरोजन को रोकते हैं एंड हम फ्लड को भी रोकने का काम करते हैं. तो बहुत सारे यूजेस हैं. नाउ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी, इफ यू डिवाइड दिस वर्ड इनटू टू, सो वन इज डाइवर्सिटी, अनदर इज बायो. सो बायो इज लाइफ, डाइवर्सिटी इज वैरायटी. So variety in life. So Earth is the only planet that supports life. This we all know. A huge variety of plants and animals are found on the earth. Remember this, जितने plants होते हैं earth पर जो मिलते हैं, variety of plants जो होती है उसको हम flora बोलते हैं, और variety in animals we call it as a fauna. So यही होता है flora and fauna. So biodiversity होती है different species of flora and fauna on the earth. The group of a population which is capable of interbreeding. So जो एक तरीके की species, इसको हम species बोलते हैं, जो interbreed कर सकते हैं, means they can reproduce their offspring. So ये इनको species बोला जाता है. All number of species depend on each other directly or indirectly. तो अभी हम देखेंगे एक ecological balance maintain करना होता है which is called ecosystem. So therefore every organism important for maintain the ecological balance. हर इंडिविजुअल का, हर स्पीशीज का, इनफैक्ट हर ऑर्गेनिज्म का अपना रोल है इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में. सो कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स. सो वी ऑल नो स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स. डीकम्पोजर्स जो डीकम्पोज करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड रिमेन्स होते हैं, उसको स्मॉल पार्ट सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है. अनदर इज स्कैवेंजर्स. सो स्कैवेंजर्स वो एनिमल्स होते हैं जो जैसे हंट नहीं करते हैं, बट जो हंटेड एनिमल्स होते हैं, जिनको उनके जो रिमेन्स होते हैं उसको खाते हैं, जैसे ईगल, हॉक. सो दीज आर स्कैवेंजर्स. सो डिसअपियर्स फ्रॉम द अर्थ. तो क्या होगा? डेड बॉडीज. अर्थ वुड बी फुल with dead bodies. तो क्या बहुत ज़्यादा, क्योंकि एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट जो है वो अपने आप को क्लीन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो डेड रिमेन्स हैं वो एज इट इज रहेंगे अगर डीकम्पोजर्स और स्कैवेंजर्स खत्म हो जाते हैं अर्थ से. सो दस द बायोडाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट. सो यू ऑल मस्ट हैव रेड द फूड चेन, फूड वेब इन द प्रीवियस क्लासेस. तो सभी ऑर्गेनिजम्स का एक इंडिविजुअल रोल है. It consists of plants. We already discussed fauna and flora. So flora, all varieties of plants, fauna, varieties of animals. Ecosystem क्या होता है? Ecosystem is a term. It is a community of living organisms such as plant, animals and microbes in conjunction with the non-living components of the environment like air, water, minerals, soil interacted as a system. These components are linked together through nutrient cycle and energy flow. So what these lines are saying, ecosystem, एक term है ecosystem.
जिसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सब उसका पार्ट है। लेट्स से अगर हम एक नेशनल पार्क की बात करते हैं जो जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है, या फिर आप एक जू की बात करते हैं, तो वहाँ का एक इकोलॉजिकल सिस्टम होता है, इसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। वहाँ का फ्लोरा एंड फौना along with the non-living things such as air, water, mountain, soil, ये सब क्या है, एक ecological system है। अब आता है biosphere. So biosphere is the part of the earth where living organisms exist. It can also be called the zone of the life on the earth and is self-regulating system. So biosphere अर्थ पे होता है सेम, जहाँ living organisms रहते हैं, और सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम होता है। सो दिस इज कॉल्ड बायोस्फीयर। अभी हम इनके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर। नाउ टाइप्स ऑफ स्पीशीज। सो जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमने उनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज एक्सटिंक्ट स्पीशीज। सो एक्सटिंक्ट एज नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दैट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं फ्लोरा एंड फोना बोथ। जो कुछ वैराइटीज लाइक एग्जाम्पल इज डायनासोर, तो वो डायनासोर्स हमारे अर्थ पे कभी हुआ करते थे, वी हैव नॉट सीन देम बट नाउ दे आर नो मोर। इसी तरीके की कुछ स्पीशीज है लाइक डायनासोर्स है, माउंटेन क्वेल्स है, पिंक हेडेड डक्स है, वल्चर्स है, और मोनल फिजेंट्स है, प्लांट्स लाइक ब्रह्मा कमल। सो फ्लोरा एंड फौना, these are we have seen the examples। तो ये फ्लोरा एंड फौना जो पहले कभी हुआ करते थे बट आज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, आज हम इनको नहीं देखते हैं। सो हमें इनके बारे में कैसे पता चला? वी गॉट टू नो, उनके फॉसिल्स मिलते हैं। सो पहले क्या हुआ था कि जब ये एनिमल्स मरे होंगे तो उनके जो रिमेन्स हैं वो क्या होते गए, नीचे अर्थ में बरी होते गए, जैसे कि हमने फॉसल फ्यूल पढ़ा था। सिमिलरली एनिमल्स के फॉसल्स जो हमें मिले हैं उनको स्टडीज करके वी गॉट टू नो कि इस तरह की फ्लोरा एंड फौना अर्थ पर प्रेजेंट था। नाउ नेक्स्ट इज इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज वो होती है जो खतरे में हैं। अगर हमने कोई प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए हैं तो अब बहुत जल्दी वो भी एक्सटिंक्ट स्पीशीज की कैटेगरी में आ जाएंगी, राइट? वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। सो द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, बिल्कुल कगार पर खड़ी है, खत्म होने के, एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, विल बिकम एक्सटिंक्ट इफ वेल नॉट प्रोटेक्टेड एंड नर्चर्ड इन द टाइम। दीज आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीशीज। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे एशियाटिक लायन, crocodiles, blue whales, Indian rhinoceros, great Indian bustard, etc. So ये animals जो है ये कहाँ है? इंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आते हैं। अगर हमने कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं लिए तो ये कहाँ आ जाएंगे? यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। सो सर्वे इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर टू सेव एन एशियाटिक टाइगर्स in the states to find out about this and other such campaigns launched to protect threatened species। so government भी time to time projects launch करती रहती है, तो जो species threatened है यानी कि endangered है उनको prevent करने के लिए, so that वो कहीं extinct ना हो जाएं। जैसे एक टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने का गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था एंड दैट वाज प्रोजेक्ट टाइगर। सो उसमें जब ये स्टार्ट किया गया था तो बहुत कम थे, तो आज नियर अबाउट 3600 के आसपास टाइगर्स हैं। वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जिनका नंबर सफिशिएंट है, मतलब अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कोई खतरा नहीं है, लेकिन बहुत जल्द अगर इनको भी प्रिवेंट नहीं किया गया तो ये आ जाएंगी अपने ऊपर वाले स्टेप पर, विच इज इंडेंजर्ड स्पीशीज, राइट? सो वल्नरेबल डिसीजेज स्पीशीज होती है जो अभी खतरे पे नहीं है लेकिन आ सकती हैं, सो वी हैव टू लुक देम। और इसके एग्जाम्पल है सांबर, लेपर्ड, स्पॉटेड डियर एक्सेट्रा। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ वल्नरेबल स्पीशीज। नेक्स्ट इज रेयर स्पीशीज। सो रेयर स्पीशीज होती है plants and animals that those are rarely seen being represented by a small number of animals or
प्लांट, तो ये बहुत कम दिखाई देते हैं क्योंकि और किसी पर्टिकुलर जगह पर होते हैं ऐसा, क्योंकि अगर कॉमन होते हर जगह मिल जाते तो वो रेयर स्पीशीज नहीं होती, राइट। तो ये कहीं पर्टिकुलर लोकेशन पर, पर्टिकुलर सिटी में या कहीं प्रॉपर इस तरीके से मिलते हैं। सो दैट इज वाई वी हैव केप्ट देम दीज फ्लोरा एंड फौना अंडर द रेयर स्पीशीज। रेयर स्पीशीज लाई बोथ इन द कैटेगरी ऑफ वल्नरेबल एज वेल एज इंडेंजर्ड स्पीशीज। तो रेयर स्पीशीज कौन सी स्पीशीज है जो पर्टिकुलर किसी लोकेशन पे फाउंड आउट होती हैं, तो वो वल्नरेबल स्पीशीज का भी पार्ट है और इंडेंजर्ड, क्योंकि बहुत कम है। सो दैट इज वाई अगर बहुत ज़्यादा ही कम है तो इंडेंजर्ड हो जाएंगे, बट अगर थोड़ा अभी है कि अभी और मतलब नंबर ज़्यादा है, सो दे विल कम अंडर वल्नरेबल स्पीशीज। तो एग्जाम्पल है हिमालयन पॉक्यूपाइन, इंडियन पाइड, हॉर्नबिल्स एंड इंडियन एग ईटिंग स्नेक। सो ये एग्जाम्पल्स हैं रेयर स्पीशीज के। नाउ रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या होती है? ये गवर्नमेंट मेंटेन करती है, जो कि IUCN होता है। IUCN एक डिपार्टमेंट है जो कि उसने इनिशिएटिव लिया है इस तरीके का डेटा। अदरवाइज हाउ वी विल कम टू नो कि कौन कौन से एनिमल्स वल्नरेबल स्पीशीज में है, कौन से रेयर में है, किन को हमें बचाना है, किन पर हमें काम नहीं करना। सो देयर इज सम डेटा विच इज बीइंग मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट. So IUCN is maintaining this data and this data is called Red Data Book in India. इसके अलावा BSI होता है जो कि बोटानिकल सर्वे होता है। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये मेंटेन करता है फ्लोरा का डेटा। फ्लोरा मीन्स इंडियन ग्रीन बुक। ये रेड डेटा बुक है जो कि एनिमल्स के लिए है, और एक ग्रीन बुक है जो कि बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन करता है। इसमें वो स्पीशीज होती हैं प्लांट की जो थ्रेटन हो गई हैं और जिन पर हमें काम करना है, तो इसको लेवल टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। तो रेड डेटा बुक एंड ग्रीन इंडियन ग्रीन बुक जो है, इसमें डेटा मेंशन है फ्लोरा एंड फौना का, जो कि इंडेंजर्ड है, थ्रेटेंड है, एक्सटेंट है, वल्नरेबल है और रेयर स्पीशीज हैं, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब हमने देख लिया कि हमें किन किन स्पीशीज पर वर्क करना है फ्लोरा एंड फौना की। सो नाउ वी हैव टू कंजर्व देम। हमें उनकी ज़रूरत है। जैसे हमने देखा कि अगर एक पर्टिकुलर टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स ख़त्म हो जाएं तो क्या हो सकता है, जैसे स्कैवेंजर्स अगर ख़त्म हो गए, डीकम्पोजर्स ख़त्म हो गए, तो क्या होगा? अर्थ वुड बी फुल विद dead bodies. So we have to conserve the flora and fauna. So there are 106 existing national parks in India. गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 106 नेशनल पार्क इंडिया में इस्टेब्लिश किए गए, और कितना एरिया है कलेक्टिवली इनमें? 44,372.42 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है, जो लैंड है, वो लैंड किसका पार्ट है? नेशनल पार्क्स का पार्ट है। एंड 1.35% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। सो इंडिया का जितना एरिया है उसका 1.35% गवर्नमेंट ने अलॉट कर दिया है नेशनल पार्क्स को। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1975 में आया था, governs wildlife conservation and protection of endangered species. The act prohibited states trades in rare and endangered species. तो 1972 में एक एक्ट लाया गया था जिसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें जो भी स्पीशीज इंडेंजर्ड हैं या जो भी इंडेंजर्ड और वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं और रेयर स्पीशीज की कैटेगरी में आते हैं, उनकी ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड है। अगर कोई ऐसा पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाता है। सो इंडिया इज़ वेरी रिच बोथ इन फ्लोरा एंड फौना, बट मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट। सो जिनके एग्जाम्पल्स हमने अभी पढ़े थे, एंड मैनी अदर आर ऑन द रोड ऑफ एक्सटिंक्शन, जो कि वल्नरेबल है, जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं। सो दे आर ऑन द रोड
on the road to getting extinct. So in spite of various acts and rules and regulations against exploitation of wildlife, the real conservation has one of the major wildlife producer country of the world, and yet there is a skeleton staff to safeguard and interest of wildlife. So proper wildlife को protect करने के लिए proper team है जो wildlife protect करती है, but फिर भी जो poachers होते हैं, hunters होते हैं, वो अभी भी पोचिंग रोक नहीं रहे हैं, राइट। तो ये एरियाज हैं। सो प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ आर असेंशियल टू मेंटेन द अर्थ्स हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। The earth is the only known living planet, and it is because of its special environment and ecology with the life supporting. So we all know earth is the only planet on which life is possible. The conservation of wildlife which includes native plants जो हमारी कंट्री में ही है और पर्टिकुलर एरिया के जो प्लांट्स हैं, एंड एनिमल्स डिपेंड्स ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। Wildlife is the direct product of the land resources and habitat conditions. Neglect of forest means the destruction of wild animals. अगर हम इन rules को नहीं मानेंगे या हम इन animals, flora and fauna को protect नहीं करेंगे तो क्या होंगे, ये हमारी अर्थ से ख़त्म हो जाएंगे। So wildlife like we human beings need food, water and shelter. So destruction of forest, wetlands and marshes. अब हमने क्या करा, हमने फॉरेस्ट कट डाउन कर दिए, फॉरेस्ट की जो लैंड है उसको हमने एज अ ग्रास लैंड यूज़ किया है, या हमने डैम्स बना दिए हैं, या फिर हमने क्या किया, उन पर हाईवेज बना दिए, एक्सप्रेसवेज बना दिए, उनको सिटी के लिए या फार्मिंग के लिए भी यूज़ कर लिया है। तो फॉरेस्ट क्या है, ख़त्म हो गए हैं। वेटलैंड्स ख़त्म हो गई है। वेटलैंड्स होती है जहाँ मॉइस्चर, जिस लैंड पर पानी, वाटर लॉगिंग होती है पानी, तो उसको बोलते हैं वेटलैंड्स। और मार्शी एरियाज, points, grasslands etc. So eliminates their sources of food, water and habitat. So हमने क्या किया है, इन फ्लोरा एंड फौना से उनका खाना छीन लिया है, उनकी रहने की जगह विच इज शेल्टर उनकी छीन ली है, खाना पानी हमने सब ले लिया है और उस पर अपना डेवलपमेंट किया है। सो द नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान लॉन्च्ड इन 1983 प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रैटेजी as well as program for conservation of wildlife. So एक एक्ट आया था जो कि प्रोटेक्शन के लिए था, दैट वाज इन 1972। फिर 1983 में एक प्लान लॉन्च किया गया था जिसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रैटेजीज बनाई गई हैं। सो प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फौना एंड देयर हैबिटेट। प्रोटेक्टेड एरियाज आर कॉल्ड सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व। सो बायोस्फीयर जो हमने पहले पढ़ा था, नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो क्या क्या है, सेंचुरीज बनाई है। सेंचुरीज थोड़ा छोटा फॉर्म है, सेंचुरीज से जो बड़ा होता है वो नेशनल पार्क्स होते हैं। इनफैक्ट कुछ सेंचुरीज नेशनल पार्क का ही पार्ट होती है, और नेशनल पार्क से जो बड़े होते हैं वो होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। सो बायोस्फीयर रिजर्व्स में सेंचुरीज और नेशनल पार्क भी उस बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। सो हैज़ बीन earmarked plantation, cultivation, grazing, felling trees, hunting and poaching are prohibited here. So ये सब चीज़ें यहाँ मना है। सेंचुरी क्या है? So it is the area where animals are protected from any harassment to them and their habitat. तो सेंचुरीज में क्या करते हैं, एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, वहाँ पर उनका हैरेसमेंट प्रोहिबिटेड है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, गिर सेंचुरी इन गुजरात, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम दिए गए हैं। सो गिर सेंचुरी कहाँ है, गुजरात में है। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है, इट इज़ इन हरियाणा। एंड पेरियर सेंचुरी विच इज़ इन केरला। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेंचुरीज। नाउ नेशनल पार्क, जो सेंचुरी से जो बड़े होते हैं वो नेशनल पार्क होते हैं, यहाँ पर भी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। सो इट इज़ द रिजर्व्ड एरिया फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पर बिल्कुल जाना मना होता है, एनिमल्स फ्रीली मूव करते हैं। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर रिजर्व। सो लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ,
plants, animals, resources and traditional life to the tribal living in this area. So अब broader part अगर हम देखेंगे तो वो बायोस्फीयर रिजर्व है. बायोस्फीयर रिजर्व में एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है. इनफैक्ट ट्राइबल पीपल होते हैं वो भी वहाँ रहते हैं, क्योंकि ट्राइबल्स कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तभी उनको ट्राइबल्स बोला जाता है. सो ऐसी ट्राइब्स जो जंगलों में रहती है वहाँ पर उनको बायोस्फीयर रिजर्व में प्रोटेक्ट किया जाता है. सो द बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इंक्लूड द फॉलोइंग: डिब्रू, शिकोवा, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, कंचनजंगा मानस, नंदा देवी, नीलगिरी, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज और पंचमरी, सुंदरबंस और सिमली पाल. सो ये कुछ नाम है किसके, बायोस्फीयर रिजर्व के, जहाँ पर ट्राइब्स को और एनिमल्स को, फ्लोरा फौना सबको प्रोटेक्ट किया जाता है. तो ये कुछ और नेशनल पार्क हैं जो अभी हमने यहाँ पढ़े थे. जो नेशनल पार्क्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं: कान्हा नेशनल पार्क विच इज़ इन मध्य प्रदेश, बेल्टा नेशनल पार्क विच इज़ इन झारखंड, तडुबा नेशनल पार्क इन महाराष्ट्र एंड सिमलीपल नेशनल पार्क विच इज़ इन ओडिशा. तो ये हमने पढ़े सेंचुरीज क्या हैं, नेशनल पार्क क्या हैं एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या हैं. नाउ वी हैव अ प्रोजेक्ट. Take a physical map of India and mark the position of the different national sanctuaries. तो ये आपका प्रोजेक्ट है. You can take the map और आप उसमें मार्क कर सकते हो. इनफैक्ट यू कैन गो बियॉन्ड दिस. सेंचुरीज के साथ साथ आप नेशनल पार्क भी मार्क कर सकते हो एंड यू कैन मार्क द बायोस्फीयर रिजर्व एज वेल. जो प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? इट वाज लॉन्च्ड इन 1973. उस समय बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने वाले थे. आई थिंक जब ये स्टार्ट हुआ था सो दैट टाइम ओनली 47 टाइगर्स वर लेफ्ट. जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 1973 में, अगर गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्ट करने का प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेती तो आज टाइगर्स क्या होते, एक्सटिंक्ट हो चुके होते. और ये 1973 में लॉन्च किया गया था 18 स्टेट्स ऑफ इंडिया में. और आज एज आई टोल्ड यू मोर देन 3600 टाइगर्स अवेलेबल हैं, एग्जिस्टिंग है. This project has helped in strengthening and habitat and there is the increase in tiger population in the reserved areas. Now migration क्या है? एनिमल्स एंड बर्ड्स, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब माइग्रेट करते हैं इधर से उधर. जैसे हम लोग माइग्रेट करते हैं, नोमैडिक पीपल होते हैं वो इधर से उधर जाते रहते हैं. वाई? इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन और ब्रीडिंग के लिए. तो यही एनिमल्स के लिए होता है. सो इट इज़ द सीजनल मास मूवमेंट. पर्टिकुलर सीजन में मूव करते हैं ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू escape the extreme cold, to breed or to find food. Bird, fish, whales and butterflies are some migratory animals. So majorly birds करती हैं, fishes भी करती हैं, whales करती हैं और butterfly ये migratory organisms हैं. So सबसे पहले बात करेंगे Arctic tern. So this is the longest migration from South Pole to North Pole when it is winter in the south and summer in the north. So South Pole से North Pole तक जाती है Arctic tern. Next is Siberian crane. So travel large distances, come from Poyang in China during winter. These birds visited during winter until 2002 तक आती थी ये, बट अब नहीं आ रही है. साइबेरियन क्रेन्स है जो चाइना से फ्लाई करती हैं. नेक्स्ट इज ईल्स, सो विच लिव इन फ्रेश वाटर, ट्रैवल टू द सी और टू ले देयर एग्स आफ्टर हैचिंग. ईल्स रिटर्न टू फ्रेश वाटर. तो ईल्स भी मूव करती हैं और माइग्रेट करती हैं. So next topic is deforestation. So trees are one of the most important aspect of the planet we live on. Trees are vitally important to the environment, animals and us. In fact, trees
और प्लांट्स दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। और अगर ट्रीज और प्लांट्स नहीं होंगे तो हम क्या खाएंगे? थिंक अबाउट दैट। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हर्बीवोर्स हैं, वो क्या खाएंगे? और अगर हर्बीवोर्स नहीं होंगे तो कार्निवोर्स क्या खाएंगे? और कार्निवोर्स भी नहीं होंगे तो ओमनिवोर्स क्या खाएंगे, राइट? सो दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ एज दे एक्ट एज अ फिल्टर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या फिल्टर करते हैं प्लांट? कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और इन रिटर्न दे आर प्रोड्यूसिंग फूड एंड गिविंग oxygen back to the environment. So forests are known as habitats and shelters for millions of species. लोगों का नहीं, फ्लोरा एंड फौना का क्या है? घर है, शेल्टर है। However, the trees on our planet are being depleted at very fast rate. According to some estimates, more than 50% of the trees cover has disappeared due to human activities. This removal of forest or trees from land and converting it for non-forest, this is called deforestation. Simple language में अगर हम बात करते हैं, so deforestation means cutting down of ट्रीज। सो पहले ट्रीज होते थे, लेकिन अब जो एस्टिमेट किया गया है तो 50% से ज़्यादा फॉरेस्ट हमारे कट चुके हैं। उस लैंड को हमने अपनी नीड के लिए, अपनी ग्रीड के लिए यूज़ कर लिया है और एनिमल्स का शेल्टर, फूड, वाटर, ये सब हमने छीन लिया है। Although humans are practiced deforestation since ages, it was in the mind 1800 that forests began to be destroyed at an unpracticed and pretended rate. One of the most worrying factor today is the massive destruction of rainforest of the world is affecting the biodiversity. अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो we all know the advantages ही advantages हैं, disadvantages कोई नहीं है। ट्रीज का, प्लांट्स का, सॉइल इरोजन वो रोकते हैं, फ्लड रोकते हैं, रेन के में हेल्पफुल है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस करते हैं, इनफैक्ट फूड प्रोड्यूस करते हैं। फूड में भी डिफरेंट वैरायटी, पल्सेस, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, ऑयल सीड्स, फ्लावर्स, परफ्यूम, बहुत कुछ, इनफैक्ट वुड भी हमें मिलता है फॉरेस्ट से। तो फिर भी हम फॉरेस्ट को अपनी ग्रीड के लिए ख़त्म करते चले जा रहे हैं। सो कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, सबसे पहला रीज़न वी ऑल आर फैमिलियर, क्योंकि हम लगातार पढ़ रहे हैं। सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। इनफैक्ट यू कैन टेक इनिशिएटिव, आप भी प्लांट कर सकते हैं बहुत सारे। ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट का वर्क है या बड़े लोगों का वर्क है, बच्चे भी इस काम को कर सकते हैं और आप इनिशिएटिव लेकर आप इस ट्रीज एंड प्लांट्स को प्लांट कर सकते हैं। सो द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर टिम्बर दैट इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग मटेरियल, फर्नीचर एंड पेपर प्रोडक्ट्स हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट लाइफ। हमें बिल्डिंग मटेरियल चाहिए, हमें फर्नीचर बनाना है और हमें क्या करना है, हमें पेपर बनाना है, जिसकी वजह से हम पेड़ काटते जा रहे हैं। सो फॉरेस्ट आर क्लियर टू अकोमोडेट एक्सपैंडिंग अर्बन स्टेट। और फिर क्या करते हैं, उस ज़मीन को शहरों में डेवलप कर लेते हैं, वहाँ अपने घर बना लेते हैं, रोड्स बना लेते हैं, डैम्स बना देते हैं। सो दिस रिजल्ट इज लॉस ऑफ फॉरेस्ट, it is a massive deforestation. Forests are also cut down to clear land for growing crops, building farms, ranches and other food growing land. So हमने क्या करा, जंगलों को काट दिया और वहाँ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दी, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, उनके लिए खाना तो फिर कैसे, कहाँ से आएगा, क्योंकि खाना तो प्लांट्स ही बनाते हैं। नेक्स्ट इज ग्रेजिंग लैंड। सो अब एनिमल्स को भी हम रेयर करते हैं, तो हमें क्या करा, हमने फॉरेस्ट को काट कर उसको ग्रेजिंग लैंड में कन्वर्ट कर दिया और हम अपने एनिमल्स को वहाँ छोड़ देते हैं ग्रेज करने के लिए। नेक्स्ट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। वुड को हम जलाते हैं, कुकिंग करते हैं, तो फ्यूल की तरह हम यूज़ करते हैं और हम पेड़ काटते जा रहे हैं कमर्शियल पर्पसेस के लिए, यानी कि हम क्लियर कर रहे हैं, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं, हाईवेज बना रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं। इसके अलावा फार्मिंग टेक्निक्स के लिए हम कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए कर रहे हैं। और एसिड रेन, इसके क्या है, एसिड रेन इज द इम्पैक्ट। सो फॉरेस्ट फायर्स कैन अकर नेचुरली और इन द मोस्ट केसेस are deliberate attempts by men to clear huge
फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट फायर भी है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। हमने लास्ट कंबशन के चैप्टर में किया था कि जब एकदम ड्राई लीव्स होती है और इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचता है तो ये क्या करती हैं, बहुत जल्दी फायर कैच कर लेती है और पूरे के पूरे जंगल जल जाते हैं, प्लांट्स और ट्रीज उनमें आग लग जाती है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सो पहला इफेक्ट है इरोजन ऑफ सॉइल। सॉइल को होल्ड करके रखती है रूट्स। जो रूट्स अगर नहीं होगा तो सॉइल क्या करेगी, सॉइल फ्री हो जाएगी, या तो विंड के थ्रू इरोजन होगा या वाटर के थ्रू जब फ्लड होगा। अगर ट्रीज नहीं है तो फ्लड भी ज़्यादा आएंगे क्योंकि पानी जिस स्पीड से आएगा उस स्पीड को रोकने वाला कोई नहीं होगा। और क्या होगा, पानी सारा सी, ओशन या पानी वेस्ट होता जाएगा, कहाँ, सॉइल में एब्जॉर्ब नहीं होगा। सो अंडर वाटर लेवल जो है, जो अर्थ का जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी रिड्यूस होगा। Next is disruption of water cycle. So disruption of water cycle में trees contribute in a large way in maintaining the water cycle. They draw up water via their roots which can then release into the atmosphere. A large part of the water that circulates in the ecosystem of rainforest, for instance, remains inside the plants. क्या होता है, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती रहती है और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है। और ये पानी जो है, जाइलम जो होता है, जाइलम क्या करता है, टिश्यूज होते हैं और वो प्लांट के पार्ट्स में उस वाटर को लेकर जाते हैं। उसके बाद ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जो मोस्टली चलता रहता है पूरे टाइम। इसका मतलब वाटर वेपराइज होता रहता है। जब वाटर वेपर्स बनेंगे तो क्या होगा, क्लाउड्स फॉर्म होंगे, क्लाउड्स फॉर्म होंगे तो क्या होगा, रेन होगी। तो अगर पेड़ ही नहीं है तो बारिश भी तो कम हो जाएगी, right? So this is disruption of water cycle. Next is loss of biodiversity. A unique biodiversity of various geographical area is being lost on a scale. क्यों? क्योंकि हमने जंगल काट दिए हैं, जंगल कट गए हैं तो एनिमल्स का घर, शेल्टर ख़त्म हो गया है, उनके लिए फूड ख़त्म हो गया है, उनके लिए पानी नहीं है, तो क्या हो रहा है, इट इज़ अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. Now flooding and drought. So flooding and drought we have already discussed. फ्लडिंग को रोकते हैं. ड्रॉट, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगी, ज़मीन बंजर हो जाएगी, ज़मीन में कुछ नहीं उगेगा और क्या होगा, ऐसे क्रैक्स आ जाएंगे. बारिश नहीं होगी तो ड्रॉट वाली सिचुएशन आएगी. नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग. सो प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रीज क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते रहते हैं, तो क्या होता है, टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है अर्थ का. और कार्बन डाइऑक्साइड है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं. सो क्या होता है, टेम्परेचर अर्थ का मेंटेन रहता है. बट अगर प्लांट्स एंड ट्रीज नहीं होंगे तो टेम्परेचर डेफिनेटली राइज करेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एमिशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का. एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा लेवल पर है. हम इतने ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ करते हैं, इतनी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, इतनी फैक्ट्रीज चल रही है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं. वो सब अगर बढ़ते जाएंगे और प्लांट्स कम होते जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर अर्थ का राइज होता रहेगा. नाउ रिफॉरेस्टेशन. रिफॉरेस्टेशन उन प्लेसेस को आइडेंटिफाई करना जहाँ पर पहले पेड़ पौधे थे, जंगल थे और वहाँ पर दोबारा से प्लांटेशन करना. दिस इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन. सो इट इज़ अ री एस्टैब्लिशमेंट और एक्सपेंशन ऑफ अ फॉरेस्ट विच वॉज प्रीवियसली डिस्ट्रॉयड or degraded. Sometimes the reforestation occur through natural regeneration. Natural regeneration होती है अपने आप. अगर हम वहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, उस लैंड को छोड़ देंगे तो क्या होता है, धीरे धीरे प्लांट्स अपने आप दोबारा से ग्रो करने लगते हैं. ग्रो करेंगे, फिर सीड्स ड्रॉप होंगे, बर्ड्स आएंगे, इधर उधर सीड्स, पॉलिनेशन होगा, सब होगा. वो धीरे धीरे करके नेचर अपने आप को रीजेनरेट करती है. सो व्हेन सीड्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टैंड्स ऑफ द ट्री आर डिपॉजिटेड on deforested land distributed by wind, insects, birds and other seed dispersers, several times land are reforested artificially. तो अपने आप क्या होती है, रीजनरेट हो जाती है. लेकिन बहुत बार हमें आर्टिफिशियली यानी हमें खुद करना पड़ता है बाय प्लांटिंग ट्रीज ऑन डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेड लैंड.
और हमें खुद प्लांटेशन करना पड़ता है. सो प्राइमरी गोल ऑफ reforestation is usually to regenerate forest with the aim of restoring the environmental and economical benefits. तो हमें बहुत ज़रूरी है reforestation करना. So we should do it. Now we have the new words: biodiversity, deforestation, flora, fauna, extinct species, endangered species, wildlife sanctuary. We have discussed in detail. Now summary points. So summary points also are the part taken from the chapter. So we have understood this chapter well. You can just go through these points and remember it. Now we have the exercises. So first question is choose the correct option. So children, first question is on earth major habitat for plant and animal is, correct answer is lithosphere. Next is red data book is published by which department of government? This is IUCN. Botanical Survey of India published Indian Green Book. It provides the list of threatened plant species. Next is the species that are on the verge of their extinction. These are called endangered species. And the fifth one is blue whale and Asiatic lion belong to this list. So they belong to the endangered species. Next question is fill in the blank, and first fill up under this category the removal of forest by cutting or burning trees. This is called deforestation. Second one, the complete destruction of a particular kind of plant or animal species from the earth's surface. So this is called extinction, जो permanent खत्म हो गए हैं. Next is the red data book is published by IUCN. Fourth, the Gir National Park is concerned with the conservation of Asiatic lion in India. So Gir National Park की हमने बात की थी, वहाँ पर Asiatic lion को conserve किया जाता है. Fifth one, Project Tiger was launched in India in which year? In 1973. Now we have the next question is true and false. Animal life is unaffected by deforestation. So is it true? No, this is false. Animal life affect होती है. A national park has larger area than biosphere reserve. This is false. Biosphere reserve में ज़्यादा area होता है और नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व का भी पार्ट हो सकते हैं. डिफॉरेस्टेशन हेल्प्स इन कंजर्वेशन सॉइल, अगेन फॉल्स. सॉइल इरोजन होता है डिफॉरेस्टेशन से. रिफॉरेस्टेशन कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, अगेन फॉल्स. ग्लोबल वार्मिंग को कम करता है रिफॉरेस्टेशन. प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज फौना. नो, फौना एनिमल्स होते हैं एंड फ्लोरा होता है plants, right? So that's it for this chapter, children. So we have learned why the reforestation is important. We will meet in the next class. Till then, stay tuned for the next videos. Bye and have a nice day.